Good morning students. So today's topic is audio visual aids. Okay, so in this video I am going to discuss with you what is AV aids. Okay, what are the characteristics of AV aids, what are the principles of AV aids, and last the classification of AV aids. Okay, so definition. So AV aids means these are the devices which can be used to make the learning more effective, more concrete, more realistic and more dynamic. Okay, so these are the audio-visual aids are the devices that can be used to make the learning more effective, more concrete. Concrete means here the teaching material are in physical form, okay, and more realistic. The learning seems the more realistic, and more dynamic means we can change the learning material according to the needs of the students. Next, the concept of audio-visual aids. Okay, so this is the chart that shows a percentage of the things we learn. Okay, so 83% of learning comes from watching and seeing something. Okay, and the 17% of means 11% hearing, 3.5% smell, and 1.5% touch, 1% taste. Okay, so we acquired the learning. 83% of the part of learnings are just come from watching and seeing. So here we use the concept of this theory. Okay, so next is here are some research evidences on AV aids. Okay, so a comparative study was done on AV aids which shows that when the things are presented through visual aids compared to traditional lecture, students can store information 6 times more when presented through visual aids compared to traditional lecture. Okay, and another is quasi experimental study that shows that the AV aids are more attentive. It increases the interest of student, it increases ability to remember the content and motivates the learners to learn. Then the next is objectives and purposes of teaching aids. फर्स्ट ये टीचिंग स्किल्स को इन्हेंस हो करते हैं, इस एनर्जी एंड टाइम को सेव करते हैं, एक क्लियर इमेज यहाँ पे डेवलप होती है जो टीचिंग कंटेंट है उसकी। टीचर्स क्या करते हैं, अब कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली स्टूडेंट्स के साथ में अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट, एंड इट इन्वॉल्व्स इंटीमेशन इन ऑब्जेक्टिव्स. Okay, so here in AV aids we can intimate our learning objectives. Okay, means we can inform the students at first what are the objectives of our teaching. Next is it also add varieties and newness to the lesson. It also provide serious experiences. So it is a base of perceptual and conceptual learning. So in perceptual and conceptual learning, here in audio visual by the audio visual aids means ki we are learning the things by our senses, means by watching, by seeing. Okay, so this this concept truly matches here. Okay, the next is it makes learners active, attentive and motivating at all. Next is it increases understanding and retention. Okay, the next is principles of AV aids. First is selection, preparation, presentation, handling, response and evaluation. Okay, the first is principle of selection. मीन्स कि जब भी एविएट्स को सेलेक्ट करना है तो उसको स्टूडेंट्स के एज लेवल, ग्रेड लेवल एंड अदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लर्नर्स के, उसके अकॉर्डिंग हमने चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है. सेकंड, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए. ओके, हम यहाँ पे जो भी थिंग्स को रियल जो दिखा रहे हैं वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए ऑफ द रियल थिंग्स. ओके, द नेक्स्ट रियलाइजेशन ऑफ डिज़ायर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. मीन्स कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में शो किए हैं वो फुली मैट होने चाहिए. ओके, द नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन. ओके, सब तो एविएट्स को प्रिपेयर करने से पहले टीचर को फुली प्रिपेयर होना होता है. फर्स्ट इज़ जो भी लोकली अवेलेबल मटेरियल्स होते हैं मीन्स कि जिनकी नॉलेज स्टूडेंट्स को भी है उनका यूज़ करना है. ओके, सो टीचर को शुड रिसीव सम ट्रेनिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ एविएट्स. ओके, टीचर को भी कुछ ट्रेनिंग रिसीव करनी होती है, मीन्स कि कैसे एविएट्स को हैंडल करना है एंड कैसे ऑपरेट करना है. इन एडवांस पहले से ट्रेनिंग करनी चाहिए. एंड स्टूडेंट्स में बी एसोसिएटेड इन द प्रिपरेशन ऑफ एड्स.
ओके स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे असिस्ट करना है कि AV8s को कैसे प्रिपेयर करते हैं, सो दैट इन फ्यूचर दे विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी. द नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन. मीन्स कि आप AV8s में जो भी आप टीचिंग कंटेंट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं उससे पहले आपने क्या करना है, प्रेजेंटेशन के पहले मीन्स आपने विजुअलाइज करना है कि आपके AV8s स्टूडेंट्स को आपने दिखाने हैं. ठीक है, इन मीन्स कि वो फ्रंट में होनी चाहिए, वो ईजिली विजिबल होनी चाहिए. एंड फैमिलियरिटी होनी चाहिए विद द यूज़ एंड मैनिपुलेशन ऑफ द एड्स, कि जो भी आपने AV8s यूज़ किया है दैट शुड बी फैमिलियर with the students. Okay, next is handle with care and proper display of aids. And the fourth principle is handling. Okay, there should be a safe storing arrangement for the AV8s. Next is response. Okay, so here teacher should guide the student to respond actively. नेक्स्ट इज़ इवेल्यूशन. देयर शुड बी हम कैसे इवेल्यूट कर सकते हैं AV8s में, मीन्स अगर आप के जो AV8s हैं देन उसके आपकी टीचिंग के फाइनल में आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स को इवेल्यूएट करना है, कैसे आपने फीडबैक लेना है, कैसे आप डिस्कशन कर सकते हैं. ठीक है, एंड क्वेश्चंस आप फीडबैक में आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं. तो ये प्रिंसिपल्स थे AV8s के. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ AV8s. आपको पता है AV8s के हैं, रिलीवेंसी है होती है यहाँ पे कि रिलीवेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू टीचिंग टॉपिक के अकॉर्डिंग. ठीक है, स्टूडेंट्स के एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलीवेंसी होती है. सेकेंड इज़ यूज़फुल और पर्पसफुल टीचिंग है. एक्यूरेसी है इसमें, इंटरेस्ट इसमें डेवलप होता है स्टूडेंट्स में. मिनिमाइज वर्बलाइजेशन यहाँ पे कम होता है. कॉम्प्रीहेंसिबिलिटी होती है, मीन्स कि हम किसी भी चीज़ को ईजिली यहाँ पे अंडरस्टेबल कर सकते हैं स्टूडेंट्स से. सिंपल है एंड चीप है. देन नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ AV8s. फर्स्ट एडवांटेज इज इट मेक्स लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव एंड कंसेप्चुअल. कंसेप्चुअल मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट्स को कैसे हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे अंडरस्टैंड करा रहे हैं बाय विद द यूज़ ऑफ सेंसेस. ठीक है, लाइक वॉचिंग, सीइंग, वी आर यूजिंग दिस कंसेप्ट फुली हियर. Then next is it grabs the attention of students. It builds interest and motivational teaching. It enhances the energy level of teaching and student. It provides a realistic approach and experience to the student. The next is at disadvantages. Okay, so disadvantages ये है कि technical problem है, क्योंकि इसमें हम जो भी हमारे पास AV8s हैं so there may come any technical problem. So improper selection means अगर हमने AV8 सेलेक्ट अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग सेलेक्ट नहीं किए हैं देन मीन्स कि वहाँ पे इम्प्रॉपर सिलेक्शन करेंगे तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को बेनिफिट नहीं होगा. फाइनेंशियल हर्डल्स यहाँ पे हो सकते हैं. ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं. स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन हो सकता है. मीन्स स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन किस वजह से होगा, अगर हमने AV8s में किया है मोर जो वहाँ पे कंटेंट हमारे जो कंटेंट है मीन्स कि अगर वो हमने उसमें ज़्यादा पिक्चर्स हैं, ठीक है, या फिर कलरफुल है तो स्टूडेंट का सारा अट्रैक्शन उसमें जाएगा. टाइम कंज्यूमिंग है, स्पेस भी चाहिए इसमें. ठीक है, देन लास्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स. ओके, ऑडियो विजुअल एड्स मेनली 3 टाइप्स के यहाँ पे हैं, सिंपली प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड एंड इलेक्ट्रॉनिक. सो प्रोजेक्टेड मीन्स जो भी टीचिंग कंटेंट है, ठीक है, टीचिंग मटेरियल है, वो क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है आगे ब्लैक बोर्ड में. सो जैसे OHP से करते हैं हम, ओवरहेड प्रोजेक्टर से, स्लाइड से, फिल्म स्ट्रिप से, LCD प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टेड है. एंड नॉन प्रोजेक्टेड में चॉक एंड बोर्ड है, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड, ओके, मॉडल्स, बुक्स, हैंडआउट्स, पपेट्स, फ्लैनल बोर्ड्स. एंड इन इलेक्ट्रॉनिक आपको पता है TV, रेडियो, मोबाइल लर्निंग एंड वर्चुअल लर्निंग. दिस इज़ अ सिंपल एंड जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स.